So we turn to 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय and reading verses 16 up to 23. 16 से 23 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 16 से 23 तक पढ़ेंगे। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। Yes. Yeah, should we have a word of prayer? Oh, Father, we look unto thee, great God of glory and majesty, for whom nothing is too hard or too difficult. We thank you that through the precious blood of our dear Savior, we can come nigh to thee, and assured of our faithful, loving high priest who intercedes for us. Lord, we claim thy victory over every kind of disturbance and pray that you'll open thy precious word to us, which is so precious. And we pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. So, the wonderful subject of 1 Corinthians 15 is the resurrection. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का जो अद्भुत विषय है वो पुनरुत्थान है। And it's concerned with two resurrections, Christ's resurrection and our resurrection. और यहाँ पे दो पुनरुत्थान का विषय है, मसीह का पुनरुत्थान और हमारा पुनरुत्थान। And actually, we as believers are living between two resurrections. और हम विश्वासी जो है ये दो पुनरुत्थान के बीच के समय में जीवित है। The resurrection of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, and our resurrection, which is in the future. और हमारा पुनरुत्थान जो भविष्य में है। And between those two resurrections is the spiritual resurrection. और इन दोनों पुनरुत्थान के बीच में आत्मिक पुनरुत्थान है। For all those who repent and believe in Christ, the spiritual new birth. और जो लोग पश्चाताप करते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए आत्मिक पुनरुत्थान हो जाता है। So first consider Christ's resurrection, and secondly our resurrection. सबसे पहले मसीह का पुनरुत्थान देखेंगे, उसके बाद हमारा पुनरुत्थान। You notice in verse 16 of 1 Corinthians 15, it says, if the dead rise not, then is not Christ raised. और पहला कुरिन्थियों 15 के 16 में लिखा है कि यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। And verse 17 tells us that if Christ is not raised, then our
our faith is in vain. और 17 में कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। And verse 18, those who uh, have fallen asleep in Christ have perished, means perished forever. और जो मसीह में सो गए वो हमेशा के लिए नाश हो गए। And in verse 20 it says, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that are asleep. और 20 पद में लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। So from this verse we understand that believers after death, they are asleep in Christ until that wonderful trumpet awakening sound comes and we rise immortal to Christ. और जो मसीह में मर जाते हैं या सो जाते हैं वो तब तक सोते रहते जब तक कि तुरही आखिरी तुरही फूकी नहीं जाएगी और हम सब मसीह में जी उठेंगे। So the Lord Jesus Christ so cares for us that that even when we sleep, waiting in after death, He still looks after and cares for us. और प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना ध्यान रखता है कि जब हम सो जाते हैं मृत्यु के पश्चात तभी उस दशा में भी मसीह हमारी तरफ ध्यान रखता है। And just to note in verse 20, the correct translation is Christ risen become the first fruits of them that are asleep. Some translations say that slept, but the correct translation is are asleep. और सही अनुवाद 20 पद का होगा जो मसीह में सो रहे हैं, सो गए हैं नहीं, सो रहे हैं, उनमें मसीह पहला फल हुआ। And then look at verse 23, where we read that Christ, that everyone, sorry, I'll say it again. As far as resurrection is concerned, everyone is risen in his own order. और 23 पद में लिखा है जो मसीह में सो गए हैं वो अपने अपने क्रम में वो जी उठेंगे। And it says that Christ is the first fruits. That means, of course, that he is the first risen one, and afterwards, those who are Christ at Christ's coming. और 23 पद में जो लिखा है सबसे पहले जी उठने वालों में मसीह है, उसके बाद जब मसीह आएगा तब हर एक व्यक्ति अपने बारी बारी में या अपने क्रम में जी उठेगा। And the order is important. This word order in the Greek, it is divisions of military order, army order. और जो 23 पद में बारी लिखा है या क्रम है वो मूल भाषा में जो है जो सेना में जैसे पांति पांति करके चलते हैं उस प्रकार से बारी बारी से लोग जी उठेंगे। And as believers, we are like a group of, let's say, a battalion of soldiers who are just waiting for the order, the trumpet sound, in readiness, ready to march off. और जिस प्रकार से सेना में पांति पांति लगाकर सैनिक एक के पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं और जैसे ही तुरही फूकी जाती है वो आगे बढ़ते हैं पांति पांति में क्रम में, वैसे ही हम भी जी उठेंगे।
So let's consider Christ's resurrection. सबसे पहले हम मसीह के पुनरुत्थान के विषय पर देखेंगे। Uh, this was several times spoken of in the Old Testament prophets. और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में कई बार भविष्यवाणी की। If we turn to Psalm 2, भजन 2 में हम देखेंगे। Psalm 2 and verse 6 and 7. उसका 6 और 7 वचन। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। So we see from verse 6 that clearly this king mentioned there is the Lord Jesus Christ, whom the Father in the future will cause to reign from Mount Zion. और 6 पद में स्पष्ट है कि पिता परमेश्वर भविष्य में प्रभु यीशु मसीह को सिय्योन पर्वत पर से शासन करने का स्थान देगा। And in verse 7, we see how the Lord Jesus Christ, he says that Jehovah has said unto me, you are my son, this day have I begotten thee. और 7 पद में पुत्र कहता है यहोवा परमेश्वर के विषय में कि तूने मुझे पुत्र कहा है। And sometimes we may wonder what this word begotten means. For example, in John 3:16, it talks about God talks about his only begotten son. और ये जो उत्पन्न हुआ शब्द है उसका आप सोच रहे होंगे क्या अर्थ है। यूहन्ना 3:16 में भी हम पाते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। So this word in the original language, begotten, means generated. और जो ये जो उत्पन्न हुआ है, जो मूल भाषा में शब्द है, उसका अर्थ है किसी वस्तु में से निर्माण किया हुआ। And we know this word in the Greek is the same word used, which we use for generator. For example, when the electricity goes off, we receive power from a generator. उदाहरण के तौर पे जैसे बिजली चली जाती है, तो जनरेटर को चलाया जाता है, तो वो जनरेटर जो है बिजली उत्पन्न करता है। वही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। And the Lord Jesus being begotten, it means like generated from above by God's power. और जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो उत्पन्न किया गया है। And this speaks of resurrection. This speaks of the Lord's resurrection. और ये जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन करता है। And this is shown conclusively in Acts chapter 13. और प्रेरितों 13 अध्याय में ये बात बड़ी स्पष्ट रीति से प्रकट की गई है। Acts chapter प्रेरितों 13 13, अध्याय I think we could read from verse 30 to verse 37. 30 से 37 तक पढ़ेंगे।
परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब से वे ही उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादाओं से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में कहा कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। So we read uh, that in verse 33 that Psalm 2 speaks of the resurrection of the Lord Jesus Christ. और 33 वचन में हम पढ़ते हैं जिसमें दूसरे भजन का उल्लेख है कि ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताता है। So that is what it means in Psalm 2 when the Father says to the Son, "This day I have begotten thee." और जब पिता कहता है आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, तो उसका यही अर्थ है। And you may say, why does it say this day? और आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों लिखा है आज ही के दिन। Uh, because very often in Scripture, when a prophecy says this day, it does not refer to a 24-hour day. और जब भविष्यवाणी कहते फलाने दिन को, तो वो 24 घंटे वाले दिन का वर्णन नहीं करते, But a period of time. लेकिन एक समय काल को दिखाती है। Like, for instance, in John 12, the Lord says, "The hour is come when the Son of Man shall be glorified." It's not the crucifixion of the Lord didn't take place in 1 hour, but it's used in a figurative way. और जब यूहन्ना 12 में प्रभु कहता है कि समय आया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, तो वो 1 घंटे का समय की बात नहीं कर रही है कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन एक विशिष्ट समय के लिए वो कहता है। And if you turn to Hebrews chapter 1 and verse 5, इब्रानियों 1 का 5 वचन देखेंगे। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कभी किसी से न कहा, कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। now here again, the writer of Hebrews quotes from Psalm 2. यहाँ पे इब्रानियों का लेखक भजन 2 में से वर्णन करता है। And to show how uh, amazing and glorious was
the resurrection of the Lord Jesus Christ, which no angel had or has had the privilege to experience. और ये इस बात को दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो कितना अद्भुत था कि इसका अनुभव किसी स्वर्गदूत नहीं कर पाया। Now, we know from Scripture that after the Lord Jesus on Calvary's cross yielded his spirit to his Father, he went to paradise. He went down to paradise, where also the repentant thief went at the same time. और प्रभु यीशु मसीह भी जो है मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में चला गया, जहाँ पर जो डाकू था जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया था वो भी उसी स्थान पे पहुंचा। And it's safe to say that paradise most certainly means the righteous side of Sheol. और जो स्वर्गलोक है वो जो अधोलोक है उसके दो हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है स्वर्गलोक जिसमें धार्मिकता के लोग जाते हैं और वो वही स्थान है where the Lord Jesus Christ spent 3 days, just like Noah spent 3 days in the belly of the whale. और जिस प्रकार नूह ने उस मछली के पेट में 3 दिन बिताए, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वो स्वर्गलोक में 3 दिन बिताए। But the gates of Sheol could not prevent the resurrection of the Lord Jesus. लेकिन अधोलोक के फाटक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं रोक पाए। And by the power of his heavenly Father, he was raised from Sheol uh, 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 to his body, where it lay uncorrupted in the grave. और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गलोक में से वापस अपनी देह में वो लौट कर आया, जो कि उस कब्र में पड़ी थी पर नहीं रही थी। And by an earthquake, the tomb burst open, and Mary Magdalene was the most blessed one to first see the Lord Jesus Christ. और एक भूकंप के द्वारा वो जो कब्र का ऊपर पत्थर लुढ़काया गया था वो हट गया और मेरी मगदलिनी जो थी उसने पहला सौभाग्य मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान की स्थिति में देख पाई। But she was not allowed to touch the Lord, because the Lord said, I have not yet risen to my Father. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको छूने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अभी तक पिता के पास नहीं पहुंचा हूं। So the Lord Jesus Christ rose to his Father through the heavens to the very throne room of God. और प्रभु यीशु मसीह जिलाए जाने के द्वारा स्वर्ग में से होकर गया, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर के सिंहासन तक वो पहुंच गया, where he presented himself to his Father spotless and blameless. जहाँ पर उसने अपने आप को पिता के सामने निर्दोष निष्कलंक करके प्रस्तुत किया, through the value and merit of his blood shed on Calvary's cross. और कलवरी क्रूस पर जो उसने अपना लहू बहाया उसी के आधार पर वो वहां पहुंच पाया।
and which Hebrews chapter 9 and verse 12 shows this occasion. और इब्रानी 9 के 12 इस घटना को दिखाता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। And so Christ is the first fruits we read in 1 Corinthians 15. और प्रभु यीशु मसीह पहला फल है, जो हमने पहला कोरिन्थियों 15 में पढ़ा। But he longs, even on earth, he longed for that wonderful day when not only he would be presented spotless and blameless before his Father's throne, but also those who belong to his church with him. और जब पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की यही लालसा थी कि ना केवल वह निर्दोष और निष्कलंक होकर पिता के सिंहासन के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन जो उस पर विश्वास करने वाले हैं वो भी उसी रीति से पिता के सिंहासन के सामने प्रस्तुत किए जाए, ये उसकी इच्छा थी। And we read of that wonderful day for Christ and for us in Jude 24. और ये इस अद्भुत दिन के विषय में मसीह के लिए और हमारे लिए भी हम यहूदा की पुस्तक में पत्री में देखते हैं, उसके 24 वचन में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। And truly, as believers, our thoughts and heart should continually, daily be set on that wonderful day. और विश्वासी होने के नाते प्रतिदिन हमारा दिल, हमारी भावनाएं उसी दिन की प्रतीक्षा की ओर लगी रहनी चाहिए। Now, let us turn to Romans chapter 1. रोमियो पहला अध्याय में चलेंगे। And reading verse 4. और उसका चौथा वचन पढ़ेंगे। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। Now, sometimes we may find it difficult to understand that verse where it says, by resurrection, the Lord Jesus was declared Son of God. और कई बार ये वाक्य हमें समझने में कठिन होता है कि पुनरुत्थान के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। Once I was talking to a Jehovah's Witness, and Jehovah's Witnesses do not believe the Lord Jesus Christ is divine, is God. और एक दिन मैं यहोवा विटनेस वाले लोगों से बात कर रहा था, और वो लोग इस बात को नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय है। And he was trying to show me that Lord Jesus Christ before Calvary was not God, before resurrection was not God, and when he was risen, he was, after he was risen, he was God. और वो मुझे ये बात दिखाना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले परमेश्वर नहीं था, कलवरी क्रूस पर चढ़ने के बाद परमेश्वर नहीं था, लेकिन जब वो मृतकों में से जी उठा उसके बाद वो परमेश्वर ठहराया गया। ऐसे वो
मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। Yeah, so he was saying in the Old Testament, the Lord Jesus was not God, but in the New Testament, after resurrection, he was God. और वो ये दिखाना चाह रहा था कि पुराने पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था और नए नियम में भी जी उठने के बाद वो परमेश्वर बन गया। I reminded him of Hebrews 13:8, where it says, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. और मैंने उसको इब्रानियों 13:8 से परिचित किया, जहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। So that means if Christ is divine in the New Testament, he must have been divine eternally before that. और यदि वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात को मानते हो, तो वो सनातन से परमेश्वर है। So what Romans 1:4 means is that by resurrection, those rights which the Lord Jesus laid aside to come to earth and become man were restored to him in resurrection. और 4 वचन का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया पृथ्वी पर, तो जो उसके अधिकार थे परमेश्वर होने के नाते, वो सब कुछ वो स्वर्ग में छोड़ के आया था। लेकिन पुनरुत्थान के द्वारा ये सारे अधिकार जो उसने छोड़ दिए थे, उसको वापस दिए गए। So, what did the Lord Jesus leave behind in heaven when he came to earth? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, तो वो कौन-सी बातें थी जो वो वहीं छोड़कर आए थे स्वर्ग में? He left his form of uh, his outward form of God. और जो उसका ईश्वरीय रूप था, बाहरी रूप था, वो उसको छोड़ आया। His right to be God, और परमेश्वर होने का जो उसका अधिकार था, his glory and uh, unapproachable light, वो अपनी महिमा और जो अगम्य ज्योति थी, वो छोड़ आया। and to come to earth, he took on a different form, and that was the form of a servant. और पृथ्वी पर आने आने के लिए उसने अपना रूप बदल दिया और उसने दास का रूप धारण किया। That means he took upon him the form of a man and became the servant of man. और इसका अर्थ ये है कि वो मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य का दास बन गया। And that, if you turn to Philippians 2, और फिलिप्पियों 2 में अगर देखें, where it says in verse 6, who being, speaking of Christ, it says, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. और 5 में लिखता है, 6 में कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। And that word morpha, form, in the Greek means an outward form. और यहाँ पे जो रूप का स्वरूप शब्द है, वो बाहरी रूप को दर्शाता है यूनानी भाषा में। So when Christ came to earth, he left his glory behind and took upon him the humble form of a servant. और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर आए, तो वो अपनी महिमा को छोड़कर आए और नम्र होकर मनुष्य के दास के रूप में आ गए। He left behind him his reputation as God,
और जो उसका पद था कि वो परमेश्वर है, वो छोड़कर प्रभु पृथ्वी पर आए and became humble even to be uh, born of a woman, to be despised, and finally crucified like a criminal. और यहाँ तक कि वो स्त्री से जन्मा और एक अ, डाकू के रूप में उसको मारा गया। So, um, so just let us now consider we have considered Christ's resurrection. Let us consider our resurrection. और हमने मसीह के पुनरुत्थान के विषय में देखा। अब हम अपने पुनरुत्थान के विषय में देखेंगे। If we could turn to Romans chapter 4, रोमियो 4 अध्याय में आएंगे and let's read from verse 19 to 25. 19 से 25 तक पढ़ेंगे। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ में मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर को की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन कि उसके लिए धार्मिकता गिना गया न केवल उसी के लिए लिखा है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिनी जाएगी, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। So it's likely that Abraham believed in God's resurrection power when, at the age of 100 and Sarah, at his wife, at 99, they were able to have a child, Isaac. और अब्राहम 99 साल का था और उसकी पत्नी भी 89 साल की थी। फिर भी परमेश्वर ने सहायता की कि उनको एक संतान उत्पन्न हो इसहाक के रूप में। You see, God put new life, resurrection life, into their old bodies, परमेश्वर ने उनके बूढ़े शरीरों में पुनरुत्थान की सामर्थ डाल दी and perhaps that was why we read that when the why Abraham was even prepared to sacrifice his son at God's command, because he knew that he believed in resurrection, God's resurrection power would raise him up. और इसीलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसहाक को बलि कर दे, तो वो तैयार हो गया, क्योंकि उसको परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास था। But we're told in 23 and 20, verse 23 and 24 that this didn't happen for his sake only, but for our sakes. और 23 और 24 वचन में ये कहा गया है कि ये केवल अब्राहम के लिए नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे लिए भी हुआ। That this resurrection power of God is available for us too. ताकि ये परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए भी उपलब्ध हो। And it says in verse 25,
it says that, sorry, it says that that Christ was raised, God raised Christ from the dead, who was delivered for our trespasses and raised for our justification. और 25 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे जिलाया जो हमारे पापों के लिए उठवाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। Now, through resurrection, it was uh, uh, through. So that again, Christ was justified through his resurrection. और प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के द्वारा धर्मी ठहराया गया। That means he was declared righteous before his Father, before the whole universe, by his being by him conquering death and rising again. और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई और जी उठा, इसके द्वारा वो सारे सृष्टि के सामने धर्मी साबित किया गया। You see, he was crucified like a criminal. एक अपराधी के रूप में Christ, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। but he went without sin. He was without sin in life and death, and he rose again undefiled from the dead. और वो जीवन में और मृत्यु में निर्दोष था, इसीलिए वो जी उठने में भी वो धर्मी ठहराया गया। So that it was very clear from the Lord Jesus Christ, the first fruits, that he rose, he was justified by his resurrection, because from the dead, no other person before that had ever come back to life from the dead. और वो इसलिए धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसके पहले जो लोग मरे थे उनमें से कोई भी जिलाया नहीं गया था। And so what this verse 25 is saying, that we are included in Christ's resurrection and therefore also justified as Christ was. और 25 पद ये बताना चाहता है कि हम भी मसीह के साथ जी उठने में धर्मी ठहराए गए हैं और जी उठने के द्वारा, मसीह के जी उठने का हम धर्मी ठहराए गए। Because for Jesus Christ, when he died on Calvary's cross, we were there being crucified with him. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। Means we were included in his death, therefore we must have been also included in his resurrection. इसका अर्थ ये है कि हम उसके मृत्यु में शामिल हो गए तो उसके पुनरुत्थान में भी हमारा भागीदार है, हमारा हिस्सा है। So this is a wonderful encouragement for believers to realize that we were justified in Christ's resurrection, having been included in his death and resurrection. और ये अद्भुत विचार है हमारे लिए क्योंकि हम उसके मारे जाने में शामिल हुए और उसी रीति से उसके जी उठने में भी हम शामिल किए गए हैं। I mentioned that this word begotten means generated, like uh, generated from above. और जो हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो जन्माया गया शब्द है वो ये दिखाता है कि हम उसमें से निकाले गए हैं या उत्पन्न हो गए। But we also have been begotten from above, because that's what the same word is used for being born again. और हम ऊपर से हमें नया जन्म मिला है
क्योंकि जो नया जन्म शब्द है ये इसी बात को दर्शाता है। Christ the first fruits, and then afterwards, we also experience that being generated from above. और प्रभु यीशु मसीह पहला फल है और हम भी उस बात को अनुभव करते हैं कि हम ऊपर से हम नया जन्म पाए हैं या जन्माए गए हैं। Now, when we are saved, we- it is not just that our sins have been judged and dealt with. It's not only that. और जब हमारा नया जन्म होता है तो केवल हमारे जो पाप क्षमा होते हैं और पाप मिटाए जाते हैं, केवल इतनी बात नहीं है। Because it's also our nature has been damaged by sin. Our very inward nature has been damaged by sin. क्योंकि पाप के कारण हमारा जो अंदरूनी स्वभाव है उसको भी नुकसान पहुंचाया है। So that means if we are really going to be righteous and know the reality of this resurrection, we have to have a new nature. और इसका मतलब ये है कि अगर हमें धर्मी ठहराया जाना है और इस नए जन्म के अनुभव में आना है तो हमारा स्वभाव भी नया होना चाहिए। And that new nature is made after the likeness of Christ's nature. और इसका मतलब जो हमारा जो नया स्वभाव है वो मसीह के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। So in the believer, we have two natures: the new nature of Christ, and still we have the old nature. इसका मतलब विश्वासी के अंदर दो प्रकार के स्वभाव है। एक स्वभाव वो है जो मसीह जैसा है और दूसरा स्वभाव पुराना स्वभाव है। And we have to learn in this life to not live according to the old nature, but to live according to Christ's wonderful nature and gradually be transformed into his image. और इसलिए हमें सीखना है इस जीवन में कि हमारा जो पुराना स्वभाव है उसके अनुसार नहीं जीना है, लेकिन जो नया स्वभाव हमें मिला है जो मसीह के स्वरूप में है उसके अनुसार जीना है, ताकि अंश अंश करते हम उसके स्वरूप में समानता में बदलते जाए। And that's why we read in 2 Corinthians 5:17 that any man who is in, or any person who is in Christ, uh, uh, is a new creation. और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, सो यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। And if you turn to Colossians chapter 3, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय and verse 1, और उसका पहला वचन। कोलोसियों 3 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। so this clearly says that if we are risen with Christ, we should be seeking those things which are above. और इसमें स्पष्ट लिखा है यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। And in verse 9 of the same chapter, it says very clearly that you have put off the old man with his deeds. और इसी अध्याय के 9 वचन में लिखा है स्पष्ट रीति से, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। And verse 10 tells us that we have put on like a new garment the very
nature of Christ. और जिस प्रकार से नए वस्त्र पहनाए जाते हैं वैसे ही 10 पद में लिखा है कि हमने मसीह को स्वभाव को या नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। And let's turn to John chapter 5 and verse 26. और यूहन्ना 5 के 26 की तरफ मुड़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। Now, from past eternity, the Father was the source of all life and power. अनादिकाल से पिता ही वो सोर्स स्रोत था जिसके द्वारा जीवन और सामर्थ्य निकलती थी या मिलती थी। The Lord Jesus Christ, He created the world by the power which He received from the Father. और पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की रचना उस सामर्थ्य के द्वारा की जो उसे पिता की ओर से मिली थी। But now we read something extra here where it says, the Father, this life which the Father has in Himself, He has given to the Son. लेकिन 26 पद में हम कुछ और अधिक पढ़ते हैं कि वह जीवन जो पिता के अंदर था वो ही जीवन उसने अपने पुत्र के अधिकार में कर दिया है। And this is such good news for the believer because that, being in Christ, we have come into His very life. ये विश्वासी के लिए बहुत उत्साहपूर्वक बात है क्योंकि हम जो मसीह में हैं उसके जीवन में भागीदार हो चुके हैं। And we have, by eating and drinking of Christ, according to John 6, we have come into a very close, intimate contact with our Lord Jesus. और यूहन्ना 6 अध्याय के अनुसार मसीह को खाने पीने के द्वारा हम मसीह के बहुत नजदीकी रिश्ते में जुड़ गए हैं। And 1 Corinthians says we have become one spirit with Him. और पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो गए हैं। So you can understand when we sin, even small sins, uh, how that disturbs our peace, and because the Lord Jesus, His to be one with Him, that means we really have to be living a holy life because Christ is so holy. और इसलिए यदि हमसे एक छोटी सी गलती गुनाह पाप हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम मसीह के साथ एक होने के कारण में पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है ताकि हम उसके पवित्रता में सहभागी हो जाए। And John 11:25, यूहन्ना 11 के 25 and 26. और उसका 25 और 26 यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह सनातन तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? And one of the things that Paul
is burdened to pray, or one of the things which Paul prays for the Ephesian church is that they might know more of his resurrection power. और इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि वो लोग जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रधान की समझ को और अधिक जाने, That their eyes might be opened by the Holy Spirit to understand the greatness of his resurrection power. और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आंखें खुल जाए कि उत्थान की सामर्थ की महानता को वो जान सके, समझ सके। And even in Paul's old age, in Philippians 3, he says his longing was to know more of Christ's resurrection power and life. और बुढ़ापे में भी पौलुस फिलिपियों 3 अध्याय में कहता है कि मैं मसीह की समर्थ और विशेष रीति से पुनरुत्थान की समर्थ को और अधिक जान सकूं। So may the Lord help us to make that longing as believers to know Him and His power of resurrection in our lives more and more. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ और अधिक जान सके, अनुभव कर सके। May the Lord bless His word. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।